के लिए हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां पर आप आए नहीं, आप लाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी के द्वारा, ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको हील करे। आज तैयारी के साथ छूटने के लिए, डिलीवरेंस के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। हालेलुया। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनके जीवन में काम किया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? नीता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हुशियारपुर। तो जब आप 8 साल के थे, यानी आज से 25 साल पहले, तब किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था। हाँ जी ब्रदर, मेरे क्या हुआ था उस जादू टोने की वजह से आपके और आपके परिवार के जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 6-7 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। और आपकी आवाज बंद हो जाती थी? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਮਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਗਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ क्योंकि दुष्ट आत्मा मेरा गला दबाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। और उसके बाद जब 2014 में आपकी मैरिज हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। जब ये अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपकी बॉडी के ऊपर जख्म होने शुरू हो चुके थे? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। और दुष्ट आत्मा के अटैक जब भी आपके ऊपर होता था तो आप बहुत ज्यादा डरे रहते थे, इसी कारण आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਨਹਾਉਣਾ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। और बिना किसी वजह से आप रोते रहते थे? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, डिप्रेशन 'ਚ चले गई कि मेरे ਨਾਲ मतलब आपकी हालत उस समय ऐसी होती जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, पागलों के जैसी आपकी हालत हो चुकी थी और आपके मन में सुसाइड करने का आता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸ ਕੱਟ ਲਾਂ ਅੱਜ। और जब ये अटैक बढ़ने लगे तो आपके ऊपर बीमारी का आत्मा भी अटैक करता था, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां आपकी बॉडी में हो गई थी? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੀਪੀ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। और कितने डॉक्टर आपने कम से कम उस वक्त चेंज करके देखे? ਬ੍ਰਦਰ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਫੀਵਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। और आपको खुद को भी ऐसा ही लगता था कि शायद आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप आजाद नहीं हो पाएंगे। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। फिर कैसे
आप चर्च में आए और कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। और क्या हुआ उसके बाद जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की? तो ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੀਹਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, मैनू मारना, मैनू इद्दां करनी है। और जब परमेश्वर के दास ने ये डिक्लेयर किया कि आपके अंदर से दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही है और आपके ऊपर स्पेशल ले हैंड प्रेयर हुई उस दिन, उस प्रेयर के बाद से आप अभी कितने समय से पूरी तरह से आजाद हैं? ब्रदर 4.5 साल तो मैं बिल्कुल फ्री हूं। कोई उसके बाद बीमारी नहीं हुई आपको? कोई बीमारी नहीं, कोई सर्वाइकल नहीं, कोई गिल्टियां नहीं, कोई लत्तां च पेन नहीं। हर एक बीमारी तो परमेश्वर ने मैनू आजाद कीता, दुष्ट आत्मा तो आजाद कीता। जैसे पहले आपके ऊपर पागलपन के अटैक होने शुरू हो चुके थे, वो भी अब बंद हो चुके हैं और 4.5 साल से आप पूरी तरह से आजाद हैं। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथ को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की महिमा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस, इस छुटकारे के लिए। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहां से हैं आप? बटाला से। इस बहन का नाम नीलम है और ये बटाला से है। 5 महीने पहले इनके टॉयलेट वाली जगह पर बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और सिस्टर जब वो दर्द हुई आप डॉक्टर के पास गए, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मुझे बोला कि फिस्टोला है। फिस्टोला नाम का एक रोग आपको हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या परेशानी थी उसके साथ? ब्रदर मुझे ना बैठने में बहुत दर्द होता था, टॉयलेट करने में बहुत दर्द होता था। इन्फेक्शन हो चुकी थी, जख्म बन चुके थे आपके? हाँ जी, हाँ जी। और जिसके कारण आपके हमेशा बहुत ज्यादा दर्द रहता था? हाँ जी। डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन दी उन्होंने? हाँ जी। आपने मेडिसिन खाई पर मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं। स्वेलिंग रहती थी, क्या और क्या आता था उस समय मन में आपके? ब्रदर मेरे मन में आता था कि जैसे मैंने ना नेट में सर्च करके देखती थी कि फिस्टोला, तो मेरे मन में आता था कि शायद मुझे ना ये डॉक्टरों के मुताबिक ना इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन के बाद भी वो बोलते कि ये फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ज़्यादा ही फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सोचती कि मेरे हस्बैंड भी आर्मी में, को मेरी केयर कौन करेगा ऑपरेशन के बाद, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। मैं बहुत डरती थी। तो ब्रदर ऐसे में बहुत टेंशन में रहती थी, पर मुझे बिलीव था परमेश्वर के ऊपर कि वो मुझे हील करेंगे। मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती थी। मुझे ना 26 दिसंबर को रात को सपने में पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया। मुझे दर्शन में ना मुझे और पापा और मम्मा मेरे ऊपर ले हैंड कर रहे ऑयल के साथ। जब उन्होंने ऑयल के साथ ले हैंड किया तो मुझे ना ऐसे गुब्बारे की तरह मैं ऊपर को उछलने लगी। मैं बहुत खुश थी। रात के 2 बजे थे, मेरी जाग खुल गई। मैं मन में मन बहुत खुश थी। और 27 को ना मैं यहाँ जलंधर में आई अपनी मम्मी के पास, तो अचानक मुझे फोन आया कि आपकी ले हैंड है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने सपने में देख लिया था कि पापा और मम्मा मेरे ऊपर ले हैंड कर रहे थे। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर ले हैंड होना है। और 31 को जब ले हैंड हुआ तो मम्मा ने मेरे ऊपर ले हैंड किया। उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी अचानक एकदम ठीक हो गई, मैं नॉर्मल हो गई। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। प्रार्थना में थे, जीवत हजूरी के साथ जुड़े हुए थे ये बहन। पहले तो स्वप्न में परमेश्वर के दास और दासी ने ऑयल लगा के इस बहन के ऊपर प्रेयर की और इन्हें पता नहीं था। और जब अगले ही दिन उठे तो इनको कॉल गई चर्च में से कि आपका ले हैंड है। और 31 दिसंबर 2022 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब ये बहन चर्च में आए तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफनुल्लाह जी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर। सिस्टर जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर मैं ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे टॉयलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एकदम से उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं, वो रोग बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर जिसके विषय में कहते थे ऑपरेशन होगा, प्रभु ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, उस रोग से आपको आजाद कर दिया है। हाँ जी, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। 2 महीने 5 दिन हो चुके हैं
ये बहन उस रोग से पूरी तरह आजाद हैं। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखो, जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में बैठे हैं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसकी जीवित हजूरी में बैठे हैं, वो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को और खुदा के दास दासी के मुख से निकलने वाले वर्ड को रिसीव करेंगे। तारीफ करें, थैंक्स करते हुए परमेश्वर के नाम को। महिमा दे सब जन। इस भाई का नाम संदीप कुमार है और ये नवा शहर के रहने वाले हैं। ब्रदर, आप बताएं अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 34 साल है। और पिछले 20 साल से आप गलत संगति में जाने की वजह से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। कैसे ये नशा आपके जीवन में शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं जब मेरे फादर साहब पूरे हो गए तो मैं देखा कि मेरे से मम्मी से काम नहीं होता, तो मैंने काम करना है। तो मैं जब काम पे लग गया तो जहां मैं फैक्ट्री में काम करता था वहां जो लड़के थे वो नशा करते थे। वो कहते थे कि तू तम्बाकू खा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू काम करेगा, तेरे में शक्ति आ जाएगी। उनके साथ मैं भी तम्बाकू खाने लग गया, बीड़ी पीने लग गया, दारू पीने लग गया, बियर पीने लग गया। फिर धीरे 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 मैं नशों की तरफ, व्यभिचार की तरफ चल पड़ा। वैसे मैं व्यभिचार करने लग गया, गलत वीडियो देखने लग गया। उनके साथ मेरी सारी संगत खराब हो गई। तो फिर मैंने एक दिन सोचा, एक दिन में उस समय कितना कितना नशा कर लेते थे आप? मैं एक तम्बाकू की पूड़ी, आधी बोतल शराब की, बीड़ी आधा बंडल सिगरेट का पी लेता था उनके साथ। आपकी फैमिली वाले, परिवार वाले जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ जी, वो मुझे बहुत समझाते थे, रोकते थे, मगर उनके साथ मैं लड़ पड़ता था, झगड़ पड़ता था, थक्का मुक्की हो या लड़ पड़ता था, मारने को आता था उनके साथ में। काम क्या करते थे उस वक्त आप? मैं वेल्डिंग का काम करता था वर्कशॉप पे। और जितना भी पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादा जो था वो सारा नशों पे खराब करते नशों थे? में लगा देता था मैं। धीरे धीरे आप जब पैसे नहीं होते थे फिर कहां से पैसा अरेंज करते थे? जो मुझे नशा देते थे उनसे मैं नशा मांगता था। फिर वो मुझे कहने लगे, तू भी तो हमारे साथ पैसे कमाता है, तू तो नशा खरीद के पी सकता है, तू हमारे से नशा क्यों मांगता है? मैं बोलता था, तूने तो नशा निगाया है मुझे, तुम तो मुझे नशा देते थे, अब क्यों मुझे रोकते हो? और मुझे नशा चाहिए। 20 साल हो चुके थे आपको नशा करते हुए। हाँ जी। और धीरे धीरे आपकी लाइफ व्यभिचार में चले गई, आपके बाहर गलत संबंध थे। हाँ जी। और आपके मन में हमेशा मरने के ख्याल आते थे। हाँ जी। क्यों मरना क्यों चाहते थे? कि मैं ये यहाँ छुटकारा पाने जाता, मैं यही सोचता था कि मैं मरने के बाद ही ये छुटकारा पाने जाता हूँ। मैंने ये देखो, मैंने ब्लेड मारे, फिनाइल पी मैंने, फिर भी मुझे मौत नहीं आई। फिर मैं एक दिन ऐसा आया कि मैं एक दिन रिश्तेदार के घर गया, ठीक है, उसने मुझे कहा कि आप अपने मोबाइल पे अंकुर मिनिस्ट्री को सर्च करो। फिर मैंने टेस्टमनी को सुना, मीटिंग को देखा, विश्वास पैदा हुआ। एक दिन ऐसा विश्वास पैदा हुआ कि मैं चर्च जाऊं, मैं कुछ मेरी जिंदगी बदलेगी। तो मैं 31 दिसंबर नाइट को यहाँ आया, ठीक है। तो पहली बार ही मुझे परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे अंदर से ऐसे झटका सा लगा, कोई मेरे से अंदर कोई बाहर निकल रहा हो। फिर मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे मेरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएंगे आप 31 दिसंबर 2022 को पहली बार चर्च में आए थे? हाँ जी, हाँ जी। और पहली बार ही जब आपने परमेश्वर के दास को हुई प्रार्थना को रिसीव किया, हाँ जी, उसके आपको ऐसा लगा कोई चीज अंदर से निकल के गई आपके? हाँ जी, हाँ जी। उस वीडियो को हम देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, नशे वाले के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, टच करेंगे, उनको टच करके शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उस दिन के बाद से आपने कोई नशा नहीं किया और कोई व्यभिचार का अटैक आपके ऊपर नहीं है? नहीं जी, नहीं। कितने महीने हो चुके हैं पूरी तरह आजाद है? 2 महीने 5 दिन हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आजाद हूँ मैं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि
जब ये नशे से आजाद नहीं हो पा रहे थे तो इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। ये देख सकते हैं इनकी बाजू को, जहाँ पे इन्होंने अपनी नसों को काटने की कोशिश की ब्लेड के साथ, ताकि ये अपने आप को मार दे, और अलग अलग तरह से फिनाइल पी के और नस को काट के मरने की कोशिश की। लेकिन जब ये परमेश्वर के घर में आए तो आज 2 महीने 5 दिन से पूरी तरह से नशों से, व्यभिचार से आजाद हो चुके हैं, बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। सब जन जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं और थैंक यू जीसस बोले। कलीसिया सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े बड़े छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम कश्मीर लाल है। और इनकी गवाही है कि पिछले 4 सालों से इन्हें आंखों से धुंधला दिखाई देता था और इनको अपनी दोनों आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती थी, और जिस कारण इनकी आई से पानी आता रहता था और इन्हें दूर का बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता था और दूर की चीज़ें इन्हें डबल नज़र आती थी और कुछ भी ये प्रॉपरली पहचान नहीं पाते थे और ये काफ़ी परेशान थे। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनका चेकअप किया और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको सफ़ेद मोतिया है, और डॉक्टर ने इन्हें आई ड्रॉप्स डालने को दिए। इन्होंने लगातार 4 साल आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि डे बाय डे इनकी कंडीशन और ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी और इनकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी। और इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं इनकी आंखों की पूरी रोशनी ना चली जाए, कहीं ये अंधे ना हो जाएं। और फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, और ये भाई जब चर्च आए, इन्होंने गवाहियों को सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्होंने भी फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। और फिर 1 दिसंबर 2022 थर्सडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस बिग मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। पवित्र आत्मा मुझे ऐसे लोग दिखा रहा है जिनके आंखों में रोग है, आपकी आंखें चंगी हो रही हैं राइट नाउ। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अमृतसर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया, और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से करंट महसूस हुआ। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई इनको दे रहा था, ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब ये 3 महीने और 3 दिन से पूरी तरह से हील है, इन्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। सब जोर से हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्रदर का नाम त्रिलोचन है और ये होशियारपुर से हैं। इनकी गवाही है पिछले 25 साल से ये भाई नशा करते थे। भाई आप खुद बताएं कि कब से और कैसे नशा आया और कौन कौन सा आप नशा करते थे? सर मैं शराब बहुत पीता सी, शराब पीनी सवेर तो लैके शाम तक शराब पीनी, कितना काम करना, सारे पैसे पूते जिन्ने भी है सब शराब से ला देने। आप टोटल शराब का नशा और तंबाकू का नशा करते थे? जी सर। कितना नशा एक दिन में करते थे आप? 2 बोतलां पी जाता सी जी। एक दिन में 2 बोतल शराब की आप पी जाते थे? हाँ जी। और नशा करके हमेशा आप हमें सुबह शाम नशे में ही रहते थे? जी। काम पर भी नशे पर ही जाते थे? काम मैं ताई करता सी, जाते मैं शराब नहीं पींदा, काम नहीं मैं तो हुंदा सी। और हमेशा तम्बाकू जो था वो आपके मुंह में ही रहता था? जी। खाते समय, सोते समय? जी। ये नशा हमेशा आपके पास होता था? जी। और नशे की तलब लगती थी तो आप एकदम से आपको कोई सुध बुध नहीं रहती थी? नहीं। कहां से पैसे आते थे जब नशे करने के लिए आपके पास खुद के पास पैसे नहीं होते थे? तो जो मैं काम करता था वही पी लेता था। जो सामने मेरे यार दोस्त होते थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उनको मांग लगता था। उधार मांगकर आप नशा करते थे? जी। मैं और जितना भी कमाते थे वो सारा नशे में ही नशे से पी लेता जी। हालात कैसे थे उस समय? आपकी कंडीशन कैसी थी? हालात बहुत माड़े सी जी। घर लड़ाइयां झगड़े, भांडे चक उधर मार इधर मार, न्याणे कुटने, बुरा हाल सी जी। उस समय आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले लोग क्या कहते थे आपको? सारे शराबी कहते थे, कौन भी नहीं आंदा सी मेरे कोल। कोई आपसे बातचीत नहीं करता था? नशेड़ी या शराबी कह के आपसे बातचीत? हाँ जी। हाँ जी। एकदम आपकी लाइफ उस समय डिस्टर्ब हो चुकी थी जी। फिर ब्रदर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? सर मेरा नाल ना दोस्त वा ते ओ मैनू लेके आया सी इत्थे। उसने आपको चर्च के बारे में बताया और फिर आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। 6 नवंबर 2022 को इनके दोस्त, इनके फ्रेंड इनको चर्च में पहली बार लेके आए
और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को उठाकर नशे की आत्मा इस चर्च से, लोगों से, इनके घरों से आउट कर दो यीशु के नाम में। आउट कर दो, आउट कर दो, फायर कर दो यीशु के नाम में। भाई आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे जी। जैसे प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। वोमिटिंग आई हाँ जी। और वोमिटिंग के बाद आपको अपनी बॉडी में क्या फील हुआ? ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। एकदम से बॉडी आपकी हल्की हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन के बाद से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋਲ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਾਂ, ਆਲ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਉਧਰ ਬੋਲਣਾ। सब तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 25 साल से ये भाई नशे में थे, कोई भी इनसे बात करना पसंद नहीं करता, घर बाहर एकदम से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। पहली बार परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा ने छुआ। उस दिन से उस नशे की दुष्ट आत्मा से खुदा ने आजाद किया है, एकदम से फ्री है। कहते उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने सालों से जो इसकी लाइफ में दुष्ट आत्मा नशे की काम कर रही थी, उस शर्मिंदगी से इन्हें आजाद किया। थैंक्स करते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन धन्यवाद करें इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को सब थैंक्स करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ के रहने वाले आप? मुकेरियां। ये आपकी मदर की गवाही है। हाँ जी। 3 साल पहले क्या क्या हुआ था इनके साथ उस समय? ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਸਿਆ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ऑपरेशन कर दिता और फिर ये टोटली बेड ते चले गए। किस चीज का ऑपरेशन किया डॉक्टर ने? इन्हां दे पैर च एंकल दा ऑपरेशन होया, गिट्टे दा, क्योंकि गिट्टे की जो हड्डी है वो टूट गई थी। हाँ जी। और जब ऑपरेशन किया उसमें स्क्रू जो नट्स है वो डाले गए। हाँ जी। और 1 हफ्ता आपके मदर पूरी तरह से बेड के ऊपर हॉस्पिटल में रहे। हाँ जी। फिर कौन इनको संभालता था? कैसे ये टॉयलेट बाथरूम जा पाते थे? घर च असीं ही संभालदे सीगे, मेरा ब्रदर और मैं। और अगर इन्होंने खड़े होने की कोशिश करते थे तो डॉक्टर ने बोला था कि शिकंजा हमेशा, ये वॉकर हमेशा इनके पास रहना था। हाँ जी। और इसी के सारे से ये खड़े हो पाते थे। नहीं खड़े नहीं सी हो पाते, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उठा के लेके जाते सी। और जब हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि ये पहले तो पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, और फिर घर में इनको संभालता कौन था? इनका खाना पानी, इनको टॉयलेट बाथरूम कौन करवाता था? सारा कुछ सब मैं ही करती सी। और आपको क्या दिक्कत रहती थी जब आप अपनी मदर को संभालते थे? तो बहुत कुछ कम दा बर्डन भी हो जाता सी और फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। आपके मदर जॉब करते हैं? हाँ जी। कहाँ पे? इंडियन बैंक तलवाड़ा ब्रांच। इंडियन बैंक में ये जॉब करते हैं। हाँ जी। उसका क्या असर पड़ा फिर जॉब के ऊपर भी? जॉब तो 6 मंथ लीव लिया और इनको यही लगता था कि शायद ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ जी। फिर भी आपने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर की हुजूरी में बनाए रखा। हाँ और लगातार चर्च में ये आते गए। 26 फरवरी 2023 को जब मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपनी मदर के लिए रिसीव किया। परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की हड्डियों के रोगियों के लिए। आइए उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हड्डियों में चंगे हो जाओ, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ, राइट नाउ शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ। Be healed in the mighty name of Jesus Christ.
बहन आप खुद बताएं कि जब आपने परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी मेरे पैर चो एकदम दर्द खत्म हो गई और मैनू बहुत बढ़िया महसूस होया कि मैं हुन चल सकती हाँ। प्रभु ने मैनू छू लिया है और शिकंजे का कोई सहारा नहीं लिया आपने? नहीं जी नहीं। उसी वक्त ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए, तो आइए इनकी उस दिन की हुई उस गवाही को भी अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। 3 साल पहले ये बहन का एक्सीडेंट हुआ था। जब ये नीचे गिरे तो इनकी हड्डी टूट गई थी और तभी से शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। इसके बिना एक भी कदम इनसे नहीं चला जाता था। आज जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, उसी वक्त चल के देखा तो ये शिकंजे से पूरी तरह से आजाद है, हील है और ये चल पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस जगह के लिए। आप चल के देखें बहन, चल के देखें बिना इस शिकंजे का सहारा लिए। तारीफ करते जाए, अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। टूटी हड्डियों को परमेश्वर ने जोड़ा, इस बहन को हील किया। जो बहन बिस्तर के ऊपर थी, खड़े भी नहीं हो पाते, चल नहीं पाते थे, आज ये बहन पूरी तरह से हील होके, पूरी तरह से कंप्लीट हील होके ये गवाही देने के लिए परमेश्वर ने इनको चंगा किया। आज 1 हफ्ते से ये बहन पूरी तरह से इस चंगाई को पा चुके हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले एक्लीसिया ऊंची आवाज में, चर्च ब्रांचेस सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस जगह के लिए, इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम अमनदीप है और इनकी गवाही है कि पिछले 17 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, जिस कारण इनको सपने में सांप दिखाई देते थे, इन्हें दबाव पड़ता था और इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और दुष्ट आत्मा इनको खुली आंखों से काले साए के रूप में दिखाई देता था और इसी कारण इनको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे और इन्होंने 2 बार अपनी बाजू की नस काटकर मरने की कोशिश की और इस वजह से ये भाई बीमार भी रहने लगे और हर समय इनके सर में भयंकर दर्द रहता था और इस भाई ने 3 अलग अलग डॉक्टर से चेक करवाया, लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और इस भाई को दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा परेशान करती थी कि इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और ये भाई शराब, भुक्की, भांग, सिगरेट और मेडिकल नशा करते थे और ये भाई एक दिन में 1.5 बोतल शराब, 3 पैकेट सिगरेट और 3 बार भुक्की और 3 बार भांग का नशा करते थे और 3 कैप्सूल ये नशे के करते थे, मेडिकल नशा करते थे और ये भाई अपनी सारी कमाई नशे में उड़ा देते थे और धीरे धीरे नशे के साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए। ये भाई कंटिन्यूसली फोन पर बातें करते रहते थे और फोन पर गलत मूवीज देखते थे और जब ये भाई किसी की तरफ देखते थे तो इनके मन में गलत ख्याल आते थे और जब इनके घर वाले इनको नशा और गलत काम करने से रोकते थे तो ये भाई इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। ये भाई अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और 4-4 दिन तक ये घर नहीं आते थे, बाहर ही रहते थे और ये भाई इन सब चीजों से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे और इस भाई ने बहुत ज्यादा अन्य जगहों पर भी जाकर देखा लेकिन वहां से भी इन्हें कोई भी हल नहीं मिला और इस वजह से इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर डिलीवर करेगा और फिर ये भाई 14 अक्टूबर 2018 संडे मीटिंग के दौरान चर्च में मौजूद थे और तब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति, सिकनेस, डिजीज के साथ जब आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट आउट आउट। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया इनको एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो दुष्ट आत्मा, वो नशा पूरी तरह से इनके जीवन से जा चुका था और 4 साल 4 महीने हो चुके हैं। ये पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से डिलीवर कर दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाते परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज
जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपको भी डिलीवर करेगा, वो आपको भी छुटकारा देगा। जैसे इस भाई को छुटकारा दिया, वो आपके जीवन में भी एक बड़ी गवाही को खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से रहने वाला हूँ। 7 महीने पहले ये भाई एक्सरसाइज करते समय इनके जोर से इनके बैक में रीढ़ की हड्डी में झटका सा लगा था। भाई आप बताएं क्या हुआ था उसके बाद फिर? मेरे उसी टाइम से बैक पेन बहुत रहने लग गई थी, स्ट्रेच हो गई थी और मेरे रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो गए थे। क्या क्या दिक्कत और परेशानी आ रही थी उसके कारण आपको? मेरे से झुका बैठा नहीं जा रहा था, ठीक से खड़ा नहीं हो जा रहा था, मैं ज़्यादा देर तक सीधा होकर बैठ नहीं सकता था और लेटने समय भी मुझे सिर्फ उल्टा ही होकर सोना पड़ता था। जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने फिर? डॉक्टर ने कहा था कि आपके रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो गया और आपके मसल स्ट्रेच हो गए हैं। उन्होंने आपको मेडिसिन दी? हाँ जी, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, उन्होंने हीट भी लगवाई, काफ़ी सारी मैंने मालिशें भी करवाई, हीट भी करवाई, पर कोई असर नहीं हो रहा था। रोग बढ़ रहा था, रात को नींद नहीं आती थी? हाँ जी, सो नहीं पाते थे आप प्रॉपर? हाँ जी। इस रोग के कारण आपकी स्टडी में क्या असर हुआ? इस रोग के कारण मेरी स्टडी में बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मैं जब भी क्लास में बैठता था तो मेरा ध्यान फोकस स्टडी के ऊपर नहीं लग रहा था। मेरे बैक में इतनी पेन रहती थी कि मैं ध्यान से टीचर को सुन नहीं पाता था। और ये इसी तकलीफ के कारण, रोग के कारण आपके सब मजाक उड़ाते थे स्कूल में, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स? हाँ जी, उनको लगता था कि मैं बहाना लगा रहा हूँ, पर मुझे पता था कि मेरी कितनी बैक में पेन रहती थी। और बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे आप उस समय? हाँ जी। आप पहले से परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी। आपने अपने विषय को परमेश्वर के सामने रखा? हाँ जी। और प्रार्थना की थी? हाँ जी। क्या कहा था प्रार्थना करके? मैंने कहा था, परमेश्वर आज मैं तेरी हजूरी में आया तो मैं सेम वापस ना जाऊं। आज अपने दास के द्वारा मुझसे बात कर, मेरे ऊपर लेहन करके परमेश्वर अपनी मर्जी को मेरे ऊपर जाहिर कर, मुझे डिलीवर कर। ये भाई घर से ही लगातार ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मेरे विषय में अपने दास के द्वारा बात कर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। 21 अगस्त 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी। आइए हम उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। मुझे परमेश्वर का आत्मा एक यंग लड़के को दिखा रहा है। तेरी रीढ़ की हड्डी जो गर्दन से नीचे शुरू होती है, बिल्कुल चौथा पांचवा मन का, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह उसे टच करके सीधा कर रहे हैं। परमेश्वर का रूह तेरी लाइफ में काम करना चाहता है। तेरा नाम अमित है और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा तुझे राइट प्लेस पर लेके जाना चाहता है। और मैं देख रहा हूं वो तेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि तू अभी भी जानता है कि वो स्थान जो परमेश्वर तुझे लेके जाना चाहता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का रूह तुझे ले जाएगा अगर तू प्रार्थना करता रहेगा। भाई आप उस दिन चर्च में मौजूद थे? हाँ जी। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेके आपके विषय में बात की, जो आपकी बीमारी थी उसके विषय में बात की, कैसा फील किया उस समय आपने? जब उन्होंने ये प्रोफेसी की तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ ये इस बीमारी का जिक्र नहीं किया था, पर कैसे ये मेरी प्रोफेसी होगी? क्योंकि आप कभी भी पहले परमेश्वर के दास से नहीं मिले थे? नहीं। ना कभी चर्च में कोई मैसेज किया था? नहीं। ना कभी किसी से यहाँ पर कोई बात की थी? नहीं। और सेम जो आपकी लाइफ में हो रहा था, आपकी बीमारी, वो जो खुदा के दास के द्वारा कहे गए वर्ड वो सेम थे आपके? हाँ जी। और प्रार्थना हुई, आपने फिर शौक थे, हैरान थे, रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर? एकदम से मैंने देखा कि जब ये प्रोफेसी हुई तब मेरी रीढ़ की हड्डी से कुछ छोड़ के गए, एकदम रिलीफ, रिलैक्स, ठंडक महसूस हुई। और उस दिन से आपकी लाइफ में उस रोग से क्या बदलाव आया? एकदम बदलाव आने लगा, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, इवन इतना फेवर मुझे मिलने लगा कि परमेश्वर ने अपना फेवर तक मुझसे किया। जो टीचर मेरे साथ इतना रूड बिहेव करते थे, आज वही टीचर्स ने मुझे स्कूल का डिसिप्लिन कैप्टन बनाया। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आपने ध्यान से उन वर्ड को सुना है, परमेश्वर के दास ने कहते बीमारी भी है, ये प्रॉब्लम है, रोग है, खुदा तुझे छू के आजाद कर रहा है और तुझे राइट प्लेस के ऊपर लेके जा रहा है। जैसे प्रोफेसी हुई, रिसीव किया, बीमारी से आजाद हुए और राइट प्लेस,
जो परमेश्वर ने इस भाई के विषय में रखा था उनको इसके ऊपर जाहिर किया और इन्हें वो राइट प्लेस के ऊपर डिसिप्लिन कैप्टन आपको नियुक्त किया गया आपके स्कूल में। Yes. सब धन्यवाद देते हुए तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब धन्यवाद करते हुए, हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज के साथ सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब क्योंकि अद्भुत काम आपकी लाइफ में सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हूँ। किस चीज के आप डॉक्टर हैं? किस चीज में स्पेशलिस्ट थे आप? मैं गायनिकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपकी इनकी गवाही बहुत ही अमेजिंग है, आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है। 7 महीने पहले क्या हुआ था आपके साथ? खुल के बताएं अपनी गवाही को। 7 महीने पहले मैं ऑपरेट कर रही थी। ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट था। ऑपरेशन खत्म करते करते मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है। मुझे लगा शायद थकान के कारण ऐसा हो रहा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, वहीं चेयर रख के मैंने फिर ऑपरेशन कंप्लीट किया किसी तरह। और जब मैं अपने रूम में गई तो मैंने महसूस किया कि मेरा लेफ्ट हैंड पूरा और लेफ्ट लेग उठ नहीं रहा है, मैं उसे मूव नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे फेस में भी मैंने महसूस किया कि सुन्न हो रहा है एक तरफ लेफ्ट साइड में। मैंने थोड़ी फिक्र हुई मुझे, और मेरे आसपास जो मेरे इस कंसल्टेंट्स थी मेरी जूनियर, उनसे मैंने कहा कि ये मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ जो मेडिसिन डिपार्टमेंट था वो कंसल्टेंट आए और उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका एमआरआई होगा, क्योंकि हमें शक है कि आपको हेमरेज हुआ है। इसलिए उन्होंने मेरा एमआरआई किया और आईसीयू में एडमिट कर लिया। जब उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया तो 1 दिन तक उन्होंने मुझे सुपरविजन में सब कैथेटराइज करके और बॉटल्स वगैरह लगा के रखा, और एमआरआई की रिपोर्ट आते ही उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं तो अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज पहले से जुड़ी हुई थी। जब आपकी एमआरआई हुई तो क्या उसका रिजल्ट आया? रिपोर्ट में क्या बताया गया? वो एमआरआई में हेमरेज ही बताया, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज बताया लेफ्ट साइड में। उन्होंने कहा हेमरेज तो हो चुका है, अब इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आपके पैरालिसिस को इम्प्रूव करने की, मतलब आपकी एक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जब ब्रेन हेमरेज हुआ उसके साथ बॉडी की लेफ्ट साइड भी आपकी रुक गई थी, काम करना बंद कर गई थी। हाँ, पूरी रुक गई थी। मैं लेफ्ट हैंड से बिल्कुल नहीं कर सकती थी, लेफ्ट लेग से बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मूव करने के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए होता था जो मेरा हाथ उठा के इधर उधर रखे या पैर मूव करे। लेकिन मैंने 24/7 मतलब 1 मिनट में सोती नहीं थी, कंटिन्यूस में यहाँ के भजन जो कि आप लोग यहाँ गाते हो और जो प्रेयर्स आप करते हो, जो सरमन से मैं लगातार सुनती थी। वो सुनते सुनते इस तरह मैं मुझे 11 दिन में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहा कि मैं डिप्रेशन नहीं हुआ। फिर 11 दिन बाद उन्होंने डिस्चार्ज किया। मैंने कहा मैं घर में मैनेज कर लूँगी। अपने भाई के यहाँ गई, वहाँ मैंने एक सर्वेंट रखा और फैमिली मेम्बर्स भी थे, उनके सपोर्ट से पकड़ पकड़ के बाथरूम जाती थी। नहाना धोना तो उस समय नहीं कर सकती थी, वो मैंने 1 महीने बाद शुरू किया। मैंने भी नहीं किया, मतलब मैं तो पॉसिबल नहीं था, पर वो सर्वेंट करती थी। और धीरे धीरे वो 5 महीने तक तो मैं प्रेयर सुनती रही, लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट कंप्लीट नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खामरा चढ़ जाऊंगी, और मैं 3 बच्चों को लेके साथ में, लड़कों को, क्योंकि मेरे कोई बच्चे यहाँ नहीं हैं, मेरी डॉटर्स उनकी मैरिज हो चुकी है, तो मैं उनको लेकर आई यहाँ। वो वैसे हिंदू हैं, लेकिन उनको भी मैंने खामरा चर्च के बारे में बहुत बताया, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मेरे साथ आए। यहाँ मैं उनके सहारे से आई, और यहाँ जब मेरे ऊपर ऑयल मीटिंग हुई और मैन ऑफ गॉड ने उसमें प्रेयर किया। ये 18 दिसंबर की बात है, जब उन्होंने प्रेयर किया कि जिन्हें हड्डियों की रोग है वो ठीक हो जाए, उस समय, और साथ में ऑयल प्रेयर भी हो रही थी, स्प्रे किया। तो मैंने देखा मेरा हाथ पूरा उठने लगा, पूरा मूव करने लगा। और जब मैं आई थी तो मैं कुछ चीज़ पकड़ नहीं सकती थी ट्रेन में, लेकिन जब मैं गई तो मैं अपने आप से ट्रेन को पकड़ के इसको चढ़ सकी। मैं इतनी खुश हुई इसके लिए। मैं
मैन ऑफ गॉड का, जीसस का, डॉक्टर जीसस का बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। डॉक्टर होते हुए भी मैं डॉक्टर जीसस से बड़ा किसी को नहीं मानती हूँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि जब मैं पहले यहाँ मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, ऑयल ले गई, मेरे कई पेशेंट्स जो कि जिनके बच्चे ग्रो नहीं कर रहे थे और जिनका रिजल्ट बहुत खराब हो सकता था, वो सब बहुत अच्छी से डिलीवर हुए। ऑयल और प्रेयर से मैंने उन्हें कनेक्ट किया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। एक पैरालाइज्ड पेशेंट को परमेश्वर ने हील किया। आप दोबारा बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है। मैं प्रोफेसर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल में। जी हाँ। तारीफ करें सब। आप चल के दिखाएं, आप जो पहले नहीं कर पाते थे आप करके दिखाएं अपने आप को। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस बड़ी अद्भुत हीलिंग के लिए कि एक डॉक्टर को परमेश्वर ने हील किया, चंगा किया। उस डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन के उसके लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जितने भी पेशेंट्स इस वक्त आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आज आपने प्रेयर को रिसीव करना है ताकि परमेश्वर आपको छुए, आपको हील करे। सिर्फ फेथ करें, विश्वास करें। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, डॉक्टर को हील किया, परमेश्वर आज आपको हील करेगा, डिलीवर करेगा। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करते हो जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम पूजा है और ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के रहने वाले हैं। 2019 में स्टडी करने के लिए जब ये बहन ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां पर फॉरेन में ये शेफ का कोर्स कर रहे थे, पर इनका वीज़ा जो था वो 23 फरवरी 2023 तक का था, यानी लास्ट मंथ तक था और वो एक्सपायर होने वाला था। लेकिन इनका कोर्स जो था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। इनका कोर्स जो था वो अक्टूबर 2023 में कंप्लीट होना था। इसलिए ये अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने 23 फरवरी 2023 को वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए फाइल लगाई और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर स्पेशल सीड बोने के बारे में बताते थे तो इन्होंने लगातार बीज को बोना शुरू किया ईमानदारी के साथ। और 26 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इन्होंने उस प्रार्थना को भी रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपनी हाथों को उठाओ। आप छुटकारा चाहते हो कि नहीं? उस ऑयल को निकालो, सब ब्रांचेस, उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी पे, अपनी फाइल्स, अपने सिस्टम, उस ऑयल को अप्लाई करो राइट नाउ। उस समय इस बहन ने अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी उस फाइल के ऊपर अप्लाई किया और लगातार ये मेलबर्न ब्रांच में अपने स्पेशल सीड को बोते रहे। परमेश्वर की हुजूरी में लगातार अपने बेस्ट बीजों को इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए बोया। और 3 मार्च 2023 को इनका वीजा आ चुका था और 2 से 3 महीने जिसको लगते हैं उस वीजा को 9 दिनों में परमेश्वर ने इनको दिया। और 3 साल का मल्टीपल एंट्रीज ऑस्ट्रेलिया के वीजा के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तालियों के साथ इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से हूँ। इस भाई की गवाही ये है कि 25 साल से इस भाई के ऊपर 7 लाख का कर्जा था। भाई आप खुद बताएं अपनी गवाही को, ये कर्जा कैसे आया और क्या क्या परेशानी थी उस समय आपकी लाइफ में? ये कर्जा जी इस तरह ही कभी किसी को फड़ कभी किसी को फड़दे हौली हौली ना मैं दे पाया तो काफ़ी मैं टेंशन दे विच मैं चला गया। तो होर फिर कुछ मैं सोचदा ਸੀ कि चलो मैं काम कार करके मैं अपना कर्जा ला लवांगा। तो कारोबार ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ कुछ बेनीफिट नहीं सी हुंदा ही, कोई बेनीफिट नहीं सी हुंदा ਮੈਨੂੰ कारोबार ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, दारू ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ दारू ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। दारू ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ
ਕਿ ਇੰਨੀ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-9 10-10 ਵਜੇ ਘਰ ਵੜਨਾ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਦਾਰੂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਚਲੋ कोई नहीं, आपे एक दिन मारा सीधा करूंगा। बेचते बेचते आपने दारू का नशा शुरू किया, उसके साथ और नशे ऐड होते गए। हाँ, कौन कौन सा नशा करते थे? नाल मेडिकल नशा फिर मैं खाना शुरू कर दिता। जो मैंने दारू नहीं सी मिलती फिर मैं मेडिकल नशा करना शुरू कर दिता। फिर कैप्सूल खाने, फिर हौली हौली बीड़ियां पीनिया, सिगरटा पीनिया, होर भी ज़्यादा कि मैं डिप्रैशन के चला गया बहुत ज़्यादा। एक दिन में कितना नशा करते थे आप? मैं दारू बोतल पी लेंदा सी, फिर मेरे यार मेरे नाल बैठे, फिर 2-2 3-3 4-4 बोतलां हो जांदियां सी। फिर सारा सारा दिन नहर ते बैठे फिर पींदे रहना असीं। फिर ते रात निकल जानी इधर ही। ते काफ़ी मतलब टेंशन हुंदी सी कि मैं पैसे देने लोकां दे। सब तो ज़्यादा मेरी मेन प्रॉब्लम सी कि मैं पैसे देने सी, भी पैसिਆਂ ਦਾ करके चक्कर दे विच मैं नशा बहुत ज़्यादा मेरा वध गया सी। ते मेरी वाइफ ने भी सारा सारा दिन परेशान रहना, रोना। उन्हें बेचारी ने पता नहीं कित्थों पैसे पूए फड़ के अपने घर का गुजारा करना। ते काफ़ी मैनू अपने आप 'ਚ शर्मिंदगी महसूस ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि मैं ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ आप उस समय बिल्कुल अंदर से टूट चुके थे क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी जी। जब कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था आपको, फैमिली वाले भी नशे से भी रोक रहे थे, क्या आता था मन में और क्या सोचते थे उस समय आप? सोचना कि सी ब्रदर, बस जिंदगी यह है कि काफ़ी संघर्ष की जिंदगी दे विच मैं सोचदा है कि मैं कुछ नहीं कर पाना। बट हौली हौली जो फिर मेरे ना ब्रदर सी ते मेरी भाभी सी, वो ना जाते चर्च, उन्होंने जो मेरे घर आना ना तो मैनू आके दसना कि प्रभु बारे, तो मैं उन्होंने गालां कढ़नियां, बड़ा उन्होंने बुरा भला बोलना भी चल जाओ तुम धर्म बदलते हो, ये है वो है, बड़ा उन्होंने बोलना मैं। बट उन्होंने फिर मेरी वाइफ नाल गल्लां बातां करनियां भी चलो तुसी चर्च आया करो जे, तो चर्च दे विच तुसी मतलब परमेश्वर करेगा चंगा। मैं बड़ियां जगह ते गया, बड़ियां मैं बाबियां दी जगह ते गया, बहुत जगह ते गया, पर मैनू कितों मेरे कुछ आराम नहीं सी मिलिया। बट ये फिर मेरी वाइफ जाती हुंदी सी चर्च, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैनू भी हौली हौली चर्च जाना शुरू किया। मैं जाता रहा चर्च 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जाना शुरू किया। मैं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 साल हो गए मैनू मसीह च आया नूं। 2018 जाना शुरू किया तो मैं नशा छड्ड चुका सी। बट वो मैनू हीलिंग नहीं पूरी मिली ही जिहड़ी मैं चाहना हाँ, जिहड़ी चीज़ मैनू चाहना हाँ ना कि मैनू मिले, वो चीज़ नहीं मैनू मिलती पई ही। मैं फिर 2000 मैं एक दिन मैं यूट्यूब ते मैं ना एक पापा जी का प्रचार सुनता पाया हाँ, तो पापा जी प्रचार विच कहते पे कि अगर तुहाडे घर दे कोल एक जिंदा चर्च है तो जाओ, अगर नहीं है तो कोई गल नहीं है, 10 कदम अगे चल जाओ, पैसे खर्च करके चल जाओ, तुहानू कुछ मिलेगा। मैं उस टाइम वो वचन नूं सुनिया तो मैं बड़ा फील किया। मैं अपनी वाइफ नाल सलाह की, मैं भी मैं हुण खांभरे जाना, मैं किते नहीं जाना। मैं खांभरे आया 2025 दसंबर नूं, ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣੇ। ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ
ध्यान तारीफ करें, सब आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए, ओठों को खोलते, स्वर्ग की ओर देखते हुए, हालेलुया बोलते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं और हमारे फादर भी कहते हैं, भाई जीवत चर्च का हिस्सा बने आप, क्योंकि जब आप जीवत चर्च में जाएंगे, जीवत परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जैसे ही खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर ने छुआ इन्हें। कहते पहली बार 25 दिसंबर 2020 को मैं चर्च में आया यूट्यूब के जरिए से। जब प्रचार को सुना तो मैं चर्च में आया, और जैसे ही चर्च में आया और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पहले दुष्ट आत्मा को जाहिर होने के मैं हुक्म देता हूं, जहां भी छुपी यीशु मसीह के नाम में, जहां भी छुपी यीशु मसीह के नाम में। यस यस यस, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर करो। मैं दुष्ट आत्मा को जाते हुए देख रहा हूं। जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ, टोटली आपको हील किया, एकदम से मन बदल गया। वो सुकून जो सालों से आप ढूंढ रहे थे इधर उधर, वो आके आपको जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में मिला है। और जो कर्ज था आपके ऊपर, आप बता रहे थे कि मैं परमेश्वर की हजूरी में जब भी आता रहा और वचन को सुनता रहा, और लगातार जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज के महत्व के बारे में बताते थे, आप उस घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। अपनी घटी में बोता रहा मैं। और जैसे ही आपने वफादारी की, बीज को बोया, परमेश्वर ने आपके मार्गों को ओपन किया, आपके रास्तों को ओपन किया, और वो कर्ज उतर चुका है। बल्कि देने नहीं है, अब लेने हैं दूसरों से। लेने हैं अब। और एकदम से परमेश्वर ने आपको आनंदित कर दिया। कैसी है भाई अब आपकी लाइफ? मैं कहा बहुत ਵਧੀਆ। मैं तो लोगों को उन्होंने मैसेज देना चाहना है कि जिथे तुहानू जिंदा चर्च परमेश्वर के दास पास्टर पापा जी पास्टर अंकुर नरोला की मिनिस्ट्री दे जद ही मैनू मिली है, मैं एकदम ब्लैस हो गया। मैं सुबह उठता है, मैं अपने आप को कहना कि मैं सुपर ब्लैस है, मैं आशीष है, तो मैं धर्मी है, जो पापा ने मैंने सिखाया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद करते हुए सब जन, क्योंकि जीवत चर्च प्रभु यीशु मसीह का आपकी लाइफ में आना, ये है सबूत, ये प्रमाण है। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन नहीं। क्या आपका धर्म परिवर्तन है? क्या बदला है आपका? नहीं जी, मेरा कुछ नहीं बदलिया। मेरा वो कुछ है जो है मेरा जीवन बदलिया। ये है कि मेरा जीवन बदलिया है। बाकी धर्म धुम ते बस एवें ही हवावां ही है। लोग हवा च तीर मारी जाते हैं भी जिन्ना मर्जी दबाई जान, पर नहीं, यीशु है ते है, वो जिंदा परमेश्वर है ते जिंदा ही है। सब तारीफ, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। यही सच्चाई है। परमेश्वर आपके धर्म को नहीं, बल्कि आपको मन को, आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बदल देते हैं। ये सबूत है, ये प्रमाण है उसका। परमेश्वर ने इस भाई के जीवन को बदला है, इसकी लाइफ को बदला है। आज पूरे आनंद में है, पूरी परिवार को ब्लेस किया, आशीषित किया है, हर कर्ज से आजाद किया है। थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब धन्यवाद देते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस बहन का नाम स्तुति है और ये बेंगलोर के रहने वाले हैं। 12 फरवरी को ये बहन अपनी कार में कहीं जा रहे थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ आपके साथ उस समय? ब्रदर प्रेज द लॉर्ड सबको। एक्चुअली सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग था, आई थिंक 4 राउंड ऑफ, और उस समय मैं ड्राइव कर रही थी, खुद से ड्राइव कर रही थी। सडनली मतलब पता नहीं कहाँ से ऑल ऑफ सडन सीधा मतलब एक ट्रक मेरे सामने आई। ना हेडलाइट, ना डिपर, ना इंडिकेटर, रॉन्ग साइड से हाईवे पे, नेशनल हाईवे था, उस पे आ गई और सडनली मतलब फेस टू फेस कोलाइड किया, टक्कर मारा और मतलब ट्रस्ट हो गई मेरी पूरी कार। बट गॉड हैज सेव मी, जीसस हैज सेव मी। मुझे एक खरोच नहीं आई, मतलब कंप्लीटली कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक खरोच नहीं आई, एक भी नहीं। गाड़ी खत्म हो गई बट मुझे कुछ नहीं हुआ। और उस समय मुझे मतलब स्पिरिचुअल डैड का प्रेयर याद था, साम्स 91 एज यूजुअल, वो सर्वोच्च ईश्वर ज्ञान में आने वाले। यही मुझे याद आया कि वो तुझे महामारी से बचाएगा,
हर जगह से तुझे बचाएगा, हर पहेलियों की चाल से बचाएगा। और वो मुझे बचाया, एक खरोच नहीं आई। मेरे सारे मतलब शोरूम वाले, डॉक्टर, सबने बोला कि कैसे ऐसे हो गया। मतलब आपको उस समय परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को जब आपको याद आए, परमेश्वर के दास बोलते थे दूतों के बारे में कि एंजल आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपको संभालेंगे। ओनली साम्स 91 रिकॉल हुआ। बहुत देर तक शॉक में थी, समझ में नहीं आया कि गाड़ी को क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। मतलब आसपास कोई नहीं था, पूरा ब्लैकआउट हो गया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो ट्रक वाले तो चले गए, बट उसके बाद कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। और गाड़ी बैड कंडीशन में, और फिर कुछ मालूम नहीं। बस आपको कुछ नहीं हुआ, कोई खरोच तक नहीं आई आपके? मुझे एक खरोच नहीं आई, बस थोड़ा सा शॉक था एंड गॉट रिकवर्ड। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वो सुरक्षित करने वाला परमेश्वर, उसके वो अपने दूतों को भेजता है ताकि हमें पत्थर से ठेस ना लगे। वो अपने दूतों को हमारे बीच में भेजता है। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं कि उसके दूत आपकी रक्षा करेंगे, वो आपको संभालेंगे। ये बहन को भयानक एक्सीडेंट से परमेश्वर ने सेफ रखा। एक बार जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को हिलाएं तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे नडाला चर्च ब्रांच से। ये टेस्टमनी है, इनका नाम जयप्रकाश है और इनकी गवाही है कि 2.5 साल पहले अचानक इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। ये प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते थे। अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस जो थी वो फूलना शुरू हो जाती थी और बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। अपना काम भी सही रीति से कर नहीं पाते थे, भारी वजन उठा नहीं पाते थे और अपनी बॉडी में इतनी ज़्यादा इनके वीकनेस हो चुकी थी कि ये बिल्कुल भी खड़े तक नहीं हो पाते थे। फिर ये भाई जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि इनके लंग्स जो हैं, फेफड़े, वो सिकुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इनको ये बीमारी जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी। लिवर में स्वेलिंग है। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला। 2.5 साल लगातार मेडिसिन खाई, 10 से 15 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था, बल्कि वो और ज्यादा बदतर होती जा रही थी। अपने काम पे नहीं जा पाते थे, अकेले घर में कमाने वाले थे, जिस कारण घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। ये अपने इस रोग के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे और 20 दिन ये हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, इलाज करवाया, कोई जब फर्क नहीं पड़ा। फिर यूट्यूब के माध्यम से इनको खामरा चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 16 फरवरी 2023 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। जब परमेश्वर के दास ने बोला कि यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, तो इन्होंने उस प्रार्थना को जब रिसीव किया फेथ के साथ नडाला चर्च ब्रांच में बैठ के, तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। उसी वक्त इन्होंने चल के, भाग के अपने आप को चेक करके देखा, तब इस भाई की कोई सांस नहीं फूली। खाना खाकर देखा, इसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज 16 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद है। सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, सगाई के लिए। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम इंदू है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। आज ये फर्स्ट टाइम अपनी गवाही चर्च में देने के लिए आए हैं। पिछले 5 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। बहन, आप खुद बताएं अपनी कंडीशन के बारे में। उस समय आपकी हालत कैसी थी जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे? तो उस टाइम मेरी हालत बहुत बुरी थी और ऐसा लगता है शरीर पे किसी ने पत्थर रख दिया है और ऐसा लगता है शरीर, सुबह सुबह जब उठती थी शरीर पूरा टूटा हुआ होता था, कुछ काम नहीं कर पाती थी और बिल्कुल शरीर खराब सा लगने लग गया था, बिल्कुल भी। और आपको जब भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जब मॉर्निंग सुबह उठते थे, आपको ऐसा लगता था कोई चीज आपकी छाती के ऊपर, आपकी बॉडी पर बैठी हुई है? हाँ जी। और जब 2019 में आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद भी दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे? हाँ जी, हाँ जी। जब अकेले होते थे तब ऐसा लगता था जैसे कोई चीज दबा रही है और बहुत परेशान करती थी। जब सब लोग होते थे सब तो परेशान, जब तो परेशान नहीं करती थी, लेकिन अकेले में परेशान करती थी। उसके बाद मैरिज के बाद 2019 के बाद जब आपने फर्स्ट टाइम बेबी के बारे में सोचा तो फर्स्ट टाइम मार्च 2019 में आप प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ उसके बाद? उसके बाद 1-2 महीने तो सही गया और उसके बाद अचानक से एक रात को फिर दबाव पड़ा और अगले दिन ब्लीडिंग हो गई। आपको दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ? हाँ जी, हाँ जी। उस समय कितने महीने के प्रेग्नेंट थे आप? 2 महीने। क्या हुआ अगले दिन जब सुबह उठे? अगले दिन जब सुबह उठी, वॉशरूम गई तो देखा ब्लीडिंग हो गई। मतलब आपका मिसकैरेज हो गया? हाँ केस जी, खराब हाँ हो गया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2020 में आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद?
उसके बाद भी 2-2.5 महीने तो सही गए, फिर उसके बाद भी 3 महीने बाद फिर मिसकैरेज हो गया। फिर फरवरी 2021 में आप थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद क्या हुआ? उस टाइम मैंने पापा जी की ऑनलाइन मीटिंग सुनी 3 मई को। उसके बाद 2 दिन आपके टोटल कितने मिसकैरेज हो चुके थे? 3 मिसकैरेज हो चुके थे। 3 बार। और डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर क्या बताते थे, क्या कारण है? डॉक्टर बोलते थे कि दवाई चलेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाइयाँ खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं, दवाई खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं प्रभु में विश्वास था, तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ही चंगी हो जाऊंगी। और जब बार बार मिसकैरेज हुए जा रहे थे, आपकी बॉडी भी जो थी वो वीक होती जा रही थी, मन में क्या आता था आपके उस समय? मन में आता था कि पता नहीं कभी प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या नहीं। बहुत रोती थी मैं। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आपको उस समय? नहीं, मैं बहुत परेशान हो गई थी। आपको फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं YouTube पे वीडियोस देखती रहती थी और पापा जी की सारी वीडियोस मैं देखती थी, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी। फिर 6 मई 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया था। उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। जिनके बहनों के संतान ने आपके गर्भ को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, आपके गर्भ को वो ब्लेस कर रहा है। हर वो गर्भ जो मुझे सुन रहा है, यीशु के नाम में गर्भ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हो जा और भर जा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बहनें बेबीज को चाहती और बेबीज हो नहीं रहे, गर्भ बंद है, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धरती पे जो तू बांधेगा आसमान में बंधेगा, जो खोलेगा आसमान में खुलेगा। आपके गर्भ को खोलता हूं मैं इस धरती पे, शैतान की ताकतों को बांधता हूं जो आपके गर्भ के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से। और उस समय जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में, अपने पेट के ऊपर जब आपने हाथ रख के रिसीव किया? तो मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा और मेरा पेट में ऐसे कुछ हलचल सी हुई। तो फिर उसको मेरे को लगा 2 दिन बाद मैंने जब चेक किया, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने देखा कि पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो मैं बहुत खुश हुई कि पापा जी की प्रेयर सुनकर मेरे को इतनी अच्छी खुशखबरी मिली। मतलब जैसे प्रेयर को रिसीव किया, उसके 2 दिन बाद चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इस बार जब आप प्रेग्नेंट हुए, आपको कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? नहीं, सारे अटैक बंद हो गए। मैंने सारी ऑनलाइन मीटिंग पापा जी की सुनी है, तो सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको उसके बाद मेरी बेबी ये ठहर गई और उसके 10 महीने बाद ये 2 फरवरी 2022 को पैदा हुई। हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। बेबी गर्ल के साथ। कितने मिसकैरेज हुए थे आपके? 3 मिसकैरेज हुए। और कितने साल बाद ये बेबी हुआ? 3 साल बाद। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम लीजा है और ये दुबई के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से जब भी इन्हें पीरियड्स आते थे, तो पीरियड्स के दौरान इन्हें हैवी ब्लीडिंग रहती थी और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा इनके पेन और भारीपन रहता था। और ये एक दिन में 4 बार इन्हें कपड़े चेंज करने पड़ते थे। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे इस हैवी ब्लीडिंग के कारण। इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी थी, ये कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। पिछले 20 साल से इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स को सुनना शुरू किया। और 26 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मसीह के नाम में कमांड करता हूं, हर एक रोगी, हर एक बीमार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को हासिल करे। Be healed in Jesus name। हड्डियों में चंगे हो जा। Be healed in the mighty name of Jesus Christ। और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। उस दिन ये दुबई में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इस सामर्थी प्रार्थना के बाद इन्हें वॉशरूम का प्रेशर हुआ और इनके गुप्तांग के द्वारा रसौली बाहर आई।
जिसे देख के ये पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, क्योंकि इनको भी नहीं पता था कि ये हैवी ब्लीडिंग इनकी बॉडी में क्यों हो रही है, क्यों इनके पीरियड्स इरेगुलर है। और उस दिन रसौली के बाहर निकलने के बाद ये बहन पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। और आज तैयार रहें, ये डिलीवरेंस वीक जो परमेश्वर के दास ने आपके लिए रखे हैं, आपके डिलीवरेंस के लिए रखे हैं। आज जितने भी लोगों के अंदर ऐसे फॉरेन एलिमेंट्स है, चाहे वो रसौलियां हैं, चाहे कैंसर है, चाहे पथरियां हैं, आज उनका आखिरी दिन है जब आज आपका सामना होगा परमेश्वर के दास उसकी दासी के साथ। उन रसौलियों का आज आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर ममता, अपने हाथों को हिलाएं। आप 4 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे, क्या गवाही आपकी बताइए आप? जेएमसी की पापा जी मम्मा जी को, आई हुई कलीसिया को। मेरा नाम ममता है और मैं फगवाड़े से आई हूँ। मेरी गवाही मेरी फॉरेन की है। मैं शुरू से ही फॉरेन जाना चाहती थी, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कभी मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस, कभी मैं प्रेगनेंसी में भी बीमार हो गई थी। और फिर उसके बाद जिस दिन मेरा कितनी बार आपने आइल्स का एग्जाम दिया उस समय? मैंने 4 बार अपने आइल्स कंप्लीट करने की कोशिश करी, पर मुझे मतलब मेरी आइल्स हो नहीं पाती थी। मैं कभी बीमार हो जाती थी, या कभी मैं फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से मुझे अपनी क्लास छोड़नी पड़ती थी। लोग क्या बोलते थे आपको? मुझे लोग बोलते थे ये तो कब से क्लास जाती है, पता नहीं इसकी क्लास। ये बहन बहुत ज्यादा उस समय परेशान थे। और उसके बाद जब आपने चर्च में आप आए तो हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब स्पेशल सीड बोने के बारे में बताया, क्या किया आपने उसके बाद? मैं स्पेशल सीड बोती थी और 7 अगस्त को परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर जब ले हैंड की, तो उसके बाद मेरे बंधन टूटे और मैं ये रिसीव करती थी कि प्रभु तेरा वचन बोलता है तू मुंह खोल मैं तेरा मुंह भर दियांगा। प्रभु ने मैनू इस लायक कीता कि मैं आज ओदा सुसमाचार फैलावां ते प्रभु दा शुक्र है कि उन्हें मैनू इंग्लैंड दे वीजा नाल ब्लेस कीता। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जब आप अपने सीड को बोते हैं, आप बीज को बोते हैं, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ता है, आपके बंद रास्तों को खोलता है। 4 बार इन्होंने ट्राई किया है, आइल्स का एग्जाम दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब अपने बीज को बोया और सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया तो परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इंग्लैंड के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए। बहन क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। क्या गवाही आपकी बताएं आप? परमेश्वर ने कर्ज से आजाद किया। कितना कर्जा था आपके ऊपर उस समय? 1.5 लाख। कैसे आजाद किया परमेश्वर ने? क्या किया आपने चर्च में आके? हमने कोरोना के वजह के कारण मेरे हस्बैंड भी डिप्रेशन में चले गए थे, बिजनेस लो होते जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जब वचन बताए और चर्च में आना शुरू किया तब वहाँ परमेश्वर के दासी ने, मम्मा जी ने बताए कि अपने बिजनेस में, अपने घटियों में, अपने कमियों में भी परमेश्वर के भवन में बोना है। वैसा बीज बोना है जो आपको झंझोर के रख दे। और हमने परमेश्वर के वचन को और इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो किया और सच्चाई से हमने देना शुरू किया और हम लोग ने धीरे धीरे सारे कर्ज से परमेश्वर ने फ्री किया और बिजनेस में भी डिवाइन हेल्पर को भेजा। और जो इनकम मेरा 20 से 30 हजार मंथली था, आज परमेश्वर ने ऐसा ब्लेस किया कि आज पर मंथ 1 से 2 लाख परमेश्वर ने फाइनेंशियल ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोलते सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें उस जीवित खुदा के लिए। आप जानते हैं बीज
बोने से आपके रास्ते खुलते हैं। ये बीज बोने की ताकत है जिसको आप देख रहे हैं कि जब आप दिल खोल के खुशी के साथ अपने बीज को बोते हैं तो परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन में काम करता है। एक बार जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम ब्रदर अमनदीप इनका नाम है और 9 फरवरी 2023 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था। ब्रदर आप खुद बताएं कि क्या आपकी प्रेयर थी, आप क्या चाहते थे? मैं काफ़ी टाइम से विदेश जाना चाहता था, कनाडा में, लेकिन आसपास से जो लोग बोलते थे कि कनाडा अभी स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है, वो वीज़ा नहीं दे रहा। 10 में से 8 लोगों के वीज़े वो रिफ्यूज़ कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी डरा नहीं। मैंने अब हमेशा ही अपने दिल में भी और वर्ड्स में भी यही बोला कि मेरा वीज़ा लगेगा ही लगेगा। अगर 8 लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं तो मैं उन 2 में से हूँ जिनका वीज़ा लगेगा। क्योंकि हमेशा ही जब हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल जी बोलते थे कि आपके वर्ड्स में पावर है, तो मैं अपने वर्ड्स के ऊपर हमेशा अपना नियंत्रण रखता था कि मुझे जो बोलना है वो सही बोलना है, क्योंकि मेरे बोलने से ही मुझे मिलेगा। और काफ़ी मैं सीड भी बोता रहा, जैसे हमारी स्पिरिचुअल मदर बोलती थी कि सीड बोने के महत्व के बारे में, तो मैं सीड भी बोता रहा, अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी बोता रहा। कभी डरा नहीं सीड के मामले में कि मुझे बोना ही बोना है। अगर प्रभु देगा नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमारा जिंदा खुदा है, वो रहेगा, वो हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे बीज बोना है, प्रेयर में रहना है, बाइबल रीडिंग में रहना है, तो हमेशा मैं ऐसा ही करता रहा। जैसे अपोस्टल जी बोलते रहे कि आप लोगों को ऐसा करना है कि लोगों के बारे में जो आपको चाहिए वो दूसरों के बारे में भी प्रेयर करो। आपको वीज़ा चाहिए तो अपने दोस्तों का, भाइयों का वीज़ा मांगो जिन्होंने अप्लाई किया है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करता था। अपने भाइयों के जो मेरे भाई थे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, उनके लिए प्रेयर करता था कि प्रभु उनको इनका वीज़ा दे, ये भी तेरे बच्चे हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि अन्य जातियाँ भी तेरियाँ हैं। तो उनको भी मैं हमेशा अपनी प्रेयर में रखता था। और प्रभु ने आज मुझे कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है, क्योंकि मैंने हमेशा ही वही बोला है जो मुझे अंकुर अनुल्ला जी ने बोला था। मैंने उनके वचन जो वो बोलते थे उन पर उनको सिर्फ सुना नहीं, मैंने मनन भी किया। जैसे वो बोलते थे वैसे ही किया। तारीफ करें सब जोर से, अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया चर्च ब्रांचेस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें सब परमेश्वर का। इस बहन का नाम परवीन है और 3 साल से इनके हस्बैंड फॉरेन में सेटल होना चाहते थे। आप बताएं बहन, क्या आपके हस्बैंड कहाँ पे थे, क्या वो चाहते थे? ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਇਟਲੀ ਦਾ। 3 बार इटली का वीजा अप्लाई किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। हाँ। लेकिन जब चर्च में आप आए तो आपने हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा बीज बोने की महत्वता को जाना और घटी में अपने बीज को बोना शुरू किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੋਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ आबू ताबू दे बीजे दे नाल ब्लेस कीता। ये वर्क परमिट वीजा है, वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया इनके हस्बैंड को। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा। आप जानते हैं कि जब आपको चर्च से यहाँ से पुलपिट से बोला जाता है कि आपने अपने बीज को बोना, अपने सीड को निकालना है, तो जब आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर आपकी फिजूल खर्ची को छिड़केगा और जितने भी रास्ते शैतान ने बंद करके रखे हैं परमेश्वर उन रास्तों को खोलेगा और आपको ब्लेस करेगा। आप फेथ करें, जब आप बोते हैं तो परमेश्वर आपके कर्ज को खत्म करता है, गरीबी के श्रापों से आजाद करता है, उन कर्जों से परमेश्वर आजाद करता है। ये बड़ी एग्जाम्पल्स है आपके सामने कि परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत काम की। ऐसी हजारों गवाहियां हमारे पास है। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और चर्च ब्रांचेस से भी बहुत सारी गवाहियां हमारे पास है, जैसे फिरोजपुर ब्रांच से ब्रदर कमलजीत सिंह की गवाही हमारे पास है कि इस भाई की जिंदगी में फेलियर का स्पिरिट काम करता था, क्योंकि 2018 में जब इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये भाई मलेशिया गए तब इनकी पे इतनी कम थी कि वहाँ पर इनका जो गुजारा था वो नहीं हो पा रहा था। और इंडिया में इन्होंने 10 से 12 गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया और ये बहुत ज़्यादा भाई अपनी लाइफ में निराश थे। फिर इन्होंने दुखी होकर मजदूरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये अपनी लाइफ में स्टडी में अच्छे थे, लेकिन स्टडी भी अच्छे होने के बाद भी ये उस बिजनेस को या किसी भी काम में इनके सफलता इनको नहीं मिल रही थी। फिर जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया। 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग के दौरान प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला और परमेश्वर ने इनके नए पेंट के बिजनेस के साथ ब्लेस किया। अब 16 लोग इनके अंडर काम करते हैं। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। एक बार जोर से तालियों के साथ इस नए काम के लिए, नई ब्लेसिंग के लिए, इस नई अचीवमेंट के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
चंडीगढ़ ब्रांच से टेस्टमनी है ब्रदर सोमनाथ की कि 18 साल से इनको ब्लड वाली बवासीर का रोग था, गुप्तांग के द्वारा ब्लड आता था और दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए। 13 फरवरी 2022 को इन्होंने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद से ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें। पटियाला ब्रांच से टेस्टमनी ब्रदर बलदेव सिंह की कि पिछले 2 साल से ये भाई अपने घर के बिल्कुल नजदीक वाला प्लॉट लेना चाहते थे, लेकिन किसी भी कारण के कारण वो ओनर इन्हें प्लॉट नहीं दे रहा था। लेकिन जब इन्होंने बीज बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके मन को, उस भाई के मन को चेंज किया, डिवाइन हेल्पर मिले और इनको परमेश्वर ने उस 14.5 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे।